Hello everyone, welcome back to our channel. Today we come up with the video or a topic which is very crucial, which is recognition of trade union under First National Commission on Labor. In the last video we have already covered recognition of trade union under Code of Discipline. So now we are going to come up with this particular topic because it's very crucial in exam and very crucial to understand where the recognition has been you can say mentioned or talked about. So this particular committee has set up in 1966 under the chairmanship of Justice P.B. Ganjendra Garkar, and the report has been submitted in 1969. This is the reason why whenever you see this committee and the year, always 1969 has been mentioned. Why? Because the report submission has been done in this particular year, so this year has been mentioned there. Moving forward, why it is crucial to talk about a recognition every time? Because the number of trade union has been gradually increasing every year, and this particular rise in number of trade union are somehow creating problem or confusion, or you can say the dispute in two interstate union or inter industry union who are going to bargain to the employer. To manage this all, the recognition of trade union plays a very important role. So according to this committee, why it is important, let's read it out. The committee emphasizes that the industrial democracy requires the majority union to have the right to speak for the worker. So the union having the majority of the people or majority of the worker as their member, they should have the right to speak and act for the worker. Only recognition of trade union going to give them that particular power. So this is the reason why recognition important. Then it allows union to enter into the agreement with the employer and ensure proper worker representation. There are n number of committee, there are n number of machinery has been formed which required worker representation. So वो representation कहाँ से जाएगा? Which trade union going to send the representation of worker in that particular places, in that particular committees, उसके लिए you have required to being recognized. So this is the another crucial reason why recognition is important. Then we have to remember that even trade union act, even code of discipline, even multiple state you can say legislation has recommended the recognition of trade union, but none of them has been applied, none of them has been enforced. This is the reason why again this topic has bring into the light and making sure, trying to making sure कि ये recognition वाला जो part है वो follow होना start हो जाए, because it is very crucial. तो इवन सेकेंड 5 ईयर प्लान में भी ये मेंशन किया गया था कि वॉलेंटरी रिकग्निशन होगा, और वो आपके जो ट्रेड यूनियन है वो वॉलेंटरी आएंगे और खुद को रिकग्नाइज करने की बात करेंगे बाय द मैनेजमेंट, बाय द डिफरेंट अथॉरिटीज़. इवन कोड ऑफ डिसिप्लिन में लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि वो वॉलेंटरी बेसिस पे ट्रेड यूनियन कैन गो टू देयर मैनेजमेंट एंड आस्क फॉर द रिकग्निशन. उसके लिए कुछ बेसिक क्राइटेरियाज थे. ट्रेड यूनियन मस्ट बी रजिस्टर्ड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, कुछ मिनिमम क्राइटेरिया फॉर आपके मेंबरशिप भी थे. और ये जो पूरा प्रोसेस ऑफ रिकग्निशन होता, फॉर एन एग्जांपल इफ ट्रेड यूनियन हैज़ बिन recognized, तो that particular trade union going to enjoy the power of recognition for 2 year. मतलब आपका जो recognition status था वो 2 year के tenure के लिए बस था. Moving forward, कि हमारा जो इंटरप्राइज रिकग्निशन इसमें कैसे होगा, तो 2 लेवल पे रिकग्निशन पॉसिबल है यहाँ पे. वो 2 लेवल क्या है? पहला लेवल है इंटरप्राइज लेवल, सेकंड है इंडस्ट्रियल लेवल. इंटरप्राइज लेवल पे अ यूनियन आर गोइंग टू बी रिकग्नाइज एज अ इंटरप्राइज ट्रेड यूनियन, तो उसके पास एटलीस्ट 30% ऑफ वर्कर होने चाहिए एज एन मेंबर, जो तभी वो eligible है to go there and ask for the enterprise level recognition. देन अगर इंडस्ट्री लेवल या लोकल लेवल की बात करें तो उस ट्रेड यूनियन के पास एटलीस्ट 25% मेंबरशिप होनी चाहिए. ओनली देन दैट पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन कैन बी एलिजिबल टू बी
recognized as an industry or local area level of recognition. So these are two minimum criteria. Afterwards, even this particular committee has recommended, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट है या कोई इस्टेब्लिशमेंट है, अगर वहाँ पे 100 और मोर वर्कर हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका कंपलसरी रिकग्निशन होनी चाहिए वहाँ पे कंपलसरी आपके लॉज होने चाहिए सेंट्रल लेवल पे, जो इम्पल्स करें, जो वहाँ पे उन्हें इम्पोज करें कि यू आर गोइंग टू रिक्वायर टू बी हैव अ रिकग्नाइज ट्रेड यूनियन. और अगर हम उसकी बात करें कैपिटल की, तो सिंपली एक कैपिटल का अप्रोप्रिएट सर्टन साइज गिवन है, उसके बेसिस पे ही हम वहाँ पर सेंट्रल लेवल पे लॉ के अंदर ये इंक्लूडेड होना चाहिए कि इफ़ दिस पर्टिकुलर कंपनी or establishment having more than 100 workers and this particular size of the capital, only then that particular organization going to have a recognized trade union to represent their worker. तो ये भी प्रपोज किया गया था इस पर्टिकुलर कमीशन के अंदर. आफ्टरवर्ड्स व्हाट वर द मैथड, क्या क्या मैथड्स थे कि आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन को समझोगे, बिकॉज दोनों मैथड्स में परसेंटेज की बात की जा रही है मेंबर्स की. तो मेंबर्स को वेरीफाई कैसे करोगे, हाउ वुड यू नो कि कितने परसेंट ऑफ मेंबर्स हैं. तो वेरिफिकेशन ऑफ मेंबर होगा ऑन द बेसिस ऑफ द फी पेड. जितना फ़ी पे किसने फ़ी पे किया है उसके बेसिस पे आप जज करोगे कितने मेंबर्स हैं. जैसे कोड ऑफ डिसिप्लिन में अगर हम बात करें तो 3 महीने का फ़ी पेमेंट की हम बात कर रहे थे कि 3 महीना लास्ट 6 महीने में जिसने भी पे किया है उसको हम कंसिडर करेंगे कि नो यू आर द मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन. तो यहाँ कोई ऐसा परसेंटेज या मंथ नहीं गिवन है, बस इसमें कहा जा रहा है कि फ़ी पेमेंट के बेसिस पे हम कर सकते हैं. और ये जो करेगा वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी करेगा. ये जो वेरिफिकेशन है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी करेगा, जो अथॉरिटी यहाँ पे कंस्टिट्यूट की गई है, सजेस्ट की गई है कि ऐसी कोई अथॉरिटी होनी चाहिए. उसको हम बाद में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. और ये पर्टिकुलर जो आपका वे है टू वेरीफाई, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल आपका विजिबिलिटी देता है कि क्या वो एक्चुअल में पर्सन मेंबर है कि नहीं है. अवॉइड करता है कोई भी बायसनेस को, अवॉइड करता है मैनिपुलेशन को और कोई भी ऐसे एक्टिविटीज़ को जिससे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. शायद इन्फ्लुएंस करके हम आपसे वोट दिलवा दें, बट आपके पैसे तभी डिडक्ट होंगे जब आप विलिंगली यस बोलोगे, राइट. तो दिस इज़ द रीज़न वाई इसे हम कहते हैं कि यहाँ पे मैनिपुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है. सीक्रेट बैलेट की बात करें तो ये आपका सबसे डेमोक्रेटिक मेथड है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं और ये जो इलेक्शन कंडक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक डेमोक्रेटिक राइट देते हैं टू चूज़ इन विच पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन यू आर गोइंग टू बी अ मेंबर ऑफ. तो इसमें इश्यूज ऑब्वियसली होंगे कि इमोशनली इन्फ्लुएंस किया जाता है, फेक प्रोमिसेस किए जाते हैं, इलेक्शन एटमॉस्फेयर्स को चेंज किया जाता है. मीन्स व्हाट्सएवर यू सी इन द इंडियन इलेक्शन, वो सिमिलर काइंड ऑफ पोजीशन वहाँ पे भी हो सकता है. इस वजह से ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो जाता है और थोड़ा सा आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. बट स्टिल इसे ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेटिक वैल्यू को सपोर्ट करते हुए ये पर्टिकुलर एक्शन या फिर ये पर्टिकुलर वे है टू मेक श्योर कि आपको समझ में आए कि कौन सा ट्रेड यूनियन बेस्ट ट्रेड यूनियन है. अब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की हमने बात की थी लास्टली, अगर आपको याद है तो यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की बात की थी. तो यही इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं. तो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को कंस्टिट्यूट किया जाएगा जिसका नाम होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन. वो उसके पास पावर होगी कि रिप्रेजेंटेटिव स्टेटस को डिसाइड कर सकते हैं, उनके पास पावर होगी सीक्रेट बैलेट को कंडक्ट कर सकते हैं, उनके पास पावर होगी टू सर्टिफाई मेजॉरिटी यूनियन फॉर द कलेक्टिव बार्गेनिंग. मीन्स नाउ दिस इज़ द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो कहीं ना कहीं इसे रेगुलेट करेगी इंडस्ट्रियल लेवल पे. प्लस रिकग्निशन यहाँ पे भी 2 साल के लिए ही होगा. मीन्स द टेनर ऑफ द रिकग्निशन गोइंग टू बी ऑफ 2 years ओनली. व्हाट आर द राइट्स, क्या राइट्स होने वाले हैं अगर एक ट्रेड यूनियन रिकग्नाइज हो जाता है. तो उसके पास रिप्रेजेंट करने का पावर होगा. नाउ व्हेन द
वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर, तो वो ट्रेड यूनियन जो रिकॉग्नाइज्ड है उसके मेंबर वहाँ पे जा सकते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर, डिस्कशन कर सकते हैं एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव से कि इट कैन बी अ सिंपली बार्गेनिंग, इट कैन बी सिंपली डिस्कशन ओवर द वर्किंग कंडीशन, इट कुड बी एनीथिंग। प्रेजेंट कर सकते हैं ग्रीवियांसेस, अगर कोई भी ग्रीवियांसेस, कोई भी इशू या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनके मेंबर्स में रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट, देन दे हैव पावर, दे कैन गो देयर एंड टॉक अबाउट इट। इंस्पेक्ट कर सकते हैं वर्क प्लेस विद द प्रायर नोटिस, अगर उनको ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वर्क प्लेस पे तो इंस्पेक्शन भी ट्रेड यूनियन के एंड से हो सकता है, बट दे आर रिक्वायर्ड टू सेंड अ प्रायर नोटिस। नॉमिनेट कर सकते हैं मेंबर्स टू द ग्रीवियांस कमेटी, ग्रीवियांस कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं वर्कर के एंड से वो भी यहाँ से जा सकते हैं। नॉमिनेट कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बाय पार्ट्रेट बॉडीज़, जितनी भी बाई पार्ट्रेट्स बॉडीज़ हैं, कमिटीज़ हैं या फिर आपके बोर्ड्स हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, उसके लिए भी रिप्रेजेंटेशन इस पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन से जा सकता है। So that's all for today. I believe this video is going to help you to understand recognition process because it is very confusing, but it is very crucial to understand how the recognition process goes. Thank you. Keep watching. If you have any query, if you have any feedback, please make sure to mention down